Good day students, welcome to lecture number 15 of final accounts, financial statements with adjustments, and we are doing question number 27th. We will be doing question number 27th. Topic हमारा चल रहा है comprehensive exclusive of GST. The following is the trial balance of Mr. Raman Kirloskar on 31st March 18, and we have around 7 adjustments: closing stock depreciation, outstanding bad debts, provision for discount, rent is paid at the rate 1000 per month rent, allow IUC and IOD, bill receivable of 5000 dishonored, 5000 का बिल डिसऑनर हो गया और अभी रिकॉर्ड करना है, तो एंट्री बनेगी डेटर टू बी आर, डेटर में प्लस बी आर से माइनस, कुछ मेंशन नहीं है तो वो बिल हमारे पास ही है, तो बिल में से कर देंगे माइनस और डेटर में कर देंगे प्लस. लेट्स स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन नंबर 27 इन द बुक्स ऑफ रमन किर्लोस्कर. In the books of Raman Kirloskar, trading and profit and loss account, for the year ending 31st March 18. This is our trading and P&L account all together. This is our P&L account. This is for working note. And balance sheet. आप ट्राई करेंगे, रादर नॉट ट्राई, यू विल डू. आप पहले ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाए, फिर वर्किंग नोट्स बनाए. ये तो बोर्ड की स्पेस के हिसाब से हम ऐसे बनाते हैं. आप हमेशा ट्राई करेंगे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट एंड इफ रिक्वायर्ड द वर्किंग नोट्स. Starting with capital. The first we have is capital. It's a liability. $40,000 inner column. Plant and machine, no, 27th मैंने वैल्यू 26th की लिए, ignore that. 27th we are doing. सबसे पहले we have opening stock on 1st April 17. Opening stock, debit side of trading account 2, opening stock 62,000. Purchases and sales, purchases on the debit side of trading account 2 purchases 3,15,000. Sales to the credit side of trading account, inner column 4,48,000. Returns, purchase return have credit balance which is 2500, and sales return have debit balance which is 3700. Sundry debtors, assets, sundry debtors, assets 80,000,
sundry creditors, liabilities, $43,000. Bills receivable, assets, bills receivable, assets, $12,100. Bills payable, liability, $4,300. 5,000 का बिल डिसऑनर हो गया, जो हमने हमारे पास था, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, वो डिस्काउंटेड था, कैंडॉस था, तो डेटर्स में प्लस कर देंगे, प्लस मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स से पैसे लेने थे, नाम नहीं भी मेंशन होगा तो यू कैन जस्ट राइट प्लस डिसऑनर्ड बिल 5,000, और बिल रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा क्योंकि वो बिल की वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब द बिल हैज 0 वैल्यू नाउ। ये डिसऑनर्ड बिल जहां मर्जी लिखा हो, पहले एडजस्ट करेंगे, प्रोविजंस बाद में लगेंगी। Moving to drawings and capital. Capital to the credit side, liability side 2 lakh, and drawings will be deducted from capital minus drawings, that is 30,000. Then we have cash in hand, which is asset, $32,800. Balance with State Bank of India means bank, cash at bank, asset 3,800. No, 2,600. आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों गिवन है। Balance with State Bank, just a minute, give me some time. Cash in hand is 24,800. Yes, cash in hand is 24,800, and cash at State Bank of India is 32,800. अगर ये क्रेडिट साइड होता बैंक तो वो लाइबिलिटी में आ जाता, बैंक ओवरड्राफ्ट। डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट है। Discount received, credit side of P&L account by discount received, credit side of P&L account, which is 3,800. Discount allowed, अभी नहीं क्योंकि डिस्काउंट की प्रोविजन है तो उसमें एडजस्ट करेंगे। Then we have is carriage on purchases, that is direct expenses to carriage inward. Debit side of trading account 7,500. Carriage on sales, that is carriage outward. Debit side of P&L account 2. Carriage outward, carriage on sales 1,200. Bad debts adjust करेंगे later on. Bad debt provision adjust करेंगे later on. Furniture on 1st April and new furniture purchased on 1st Jan. Furniture is asset. So furniture, कितना फर्नीचर था हमारे पास 10,000 साल शुरू होने पर, फिर 6,000 दोबारा खरीदा तो 10 + 6 16 हो गया। 10,000 का फर्नीचर 1 अप्रैल से पूरा साल यूज़ किया, 6,000 का फर्नीचर 1 जनवरी को खरीदा है, 3 महीने यूज़ किया, तो डेप्रिसिएशन लगेगी फॉर द एंटायर ईयर, फॉर द 6 months, फॉर द 3 months, Jan, Feb and March. Yes, we have depreciation of furniture 15% minus depreciation. Working note 1, depreciation asset से माइनस करेंगे,
और ट्रेडिंग में डेबिट साइड डालेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सो एक एसेट से माइनस, एक ट्रेडिंग में डेबिट साइड कितना है, लेट्स मेक द वर्किंग नोट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 का 15% for 12 months plus 6,000 का 15% for 3 months। अगर इस क्वेश्चन में पर एनम ना लिखा होता, आई रिपीट, अगर इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम ना लिखा होता तो हम सीधा 16,000 का 15% कर देते, मंथ्स को कंसीडर ही ना करते। डेट्स कंफ्यूज करने के लिए गिवन होती हैं, बट पर एनम है तो मंथ्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगी। सो 10,000 का 15% इज 1,500 एंड 6,000 का 15% फॉर 3 months इज 225। So 10,000 का 15% 1,500 and 6,000 का 15% for 3 months is 225 प्लस करके आ रहा है 1,725। P&L में डेबिट साइड 1,725 एंड एसेट में से माइनस 1,725। इट इज 14275। Moving on, we have rent. Rent is indirect expense on the debit side of P&L. To rent, it is 10,000. Inner column Q. Question में लिखा है rent is paid at a rate of 1,000 per month. Rent 1,000 per month पे होता है, तो कितना बना 12,000, पे किया 10,000, पूरे साल का रेंट बनता है 12,000, पे किया 10,000, तो 2 हो गया आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, टोटल इज 12 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट इज लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट इज लाइबिलिटी 2,000। कैसे आया 2,000 रेंट आउटस्टैंडिंग, लेट्स सी। रेंट पेड जो कि ट्रायल बैलेंस में है 10,000, रेंट अक्रूड 1,000 पर मंथ 12,000, 12 देना था 10 दिया तो 2,000 हो गया आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही अगर हमने 13,000 दिया होता तो 1,000 हो जाता प्रीपेड। सो दिस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज वर्किंग नोट नंबर 1 and outstanding rent is working note number 2. Then we have salaries. Salaries indirect expense to salaries 25,000 without any adjustment, outer column. Commission, it is on the credit side, income by commission, P&L में credit side 2,400. Repairs, indirect expense, P&L में debit side 2 repairs 2,300. Insurance premium, indirect expense to insurance, how much insurance we have paid 3,600. ब्रैकेट में लिखा है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 18 को पे किया है पूरे साल के लिए, 1 जनवरी 18 को पे किया पूरे साल के लिए, एनुअल लिखा है ना तो ये पूरे साल के लिए हुआ, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए प्रीपेड हो गया, तो 9 मंथ्स के लिए प्रीपेड हो गया। कितना, लेट्स सी
annual insurance premium paid on 1st Jan 18, that is paid up to 31st December 19. हमने 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 19 तक का लिए पे किया, पूरे साल के लिए कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं ना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए. नाउ बुक्स क्लोज हो रही हैं मार्च में. बुक्स आर क्लोजिंग ऑन मार्च, therefore April to December is prepaid. कितना? 3600 into 9 by 12, 2700, 2700 रुपये. सीधा सीधा हिसाब है, हमने पे किया 3612 महीनों के लिए, तो 3600 डिवाइडेड बाय 12, 300 पर मंथ आता है. तो 300 पर मंथ 3 महीनों के लिए बना 900 इस साल का, और बाकी बना अगले साल के लिए प्रीपेड. प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है. विल पुट इट इन द एसेट साइड. प्रीपेड इंश्योरेंस 2700. दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3. आउटस्टैंडिंग सैलरीज, outstanding salaries 5000 given है. This is our liability, so put it in the liability side. Outstanding salaries that amounts to 5000. प्लस नहीं करेंगे सैलरी में क्योंकि वो पहले से ही प्लस हो चुकी है. डिलीवरी वैन एसेट, डिलीवरी वैन्स एसेट्स, डेट नहीं गिवन, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी. फर्नीचर की तरह नहीं, पहले पूरा साल नए फर्नीचर पर 3 महीने के लिए. डिलीवरी वैन की डेप्रिसिएशन है 20%. 75,000 का 20% इज 15,000. लेफ्ट विथ 60,000 डिलीवरी वैन्स. डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस टू delivery van expenses 15,000 to the debit side of P&L. अब चेक करेंगे क्या पूरे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट. नो, वी डोंट हैव. नाउ मूविंग टू द एक्सप्लिसिट एडजस्टमेंट जो मेंशन है. द क्लोजिंग स्टॉक इज 46,000 by closing stock in the trading side, credit side of trading account, and it will be recorded on the in the asset side. Closing stock, depreciate furniture 15%, delivery van 20% per annum basis done. Asset में से minus and debit side of P&L account. Then we have is a sum of 200 is due for repairs. Outstanding repairs liability, outstanding repairs liability 200. अब ये repairs में प्लस होना चाहिए, repairs में प्लस होना चाहिए आउटस्टैंडिंग. अब कटिंग करने की जरूरत नहीं है, अलग लिख देते हैं. टू आउटस्टैंडिंग repairs 200 and depreciation on. How much is delivery van expenses? 6,000. Depreciation on delivery van is 15,000. डिलीवरी वैन की डेप्रिसिएशन थी 15,000 और डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस थे 6,000. राइट. मूविंग टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स डन. थर्ड एडजस्टमेंट, रिपेयर्स में प्लस अलग लिख दिया एंड लाइबिलिटी साइड. Rent is paid done. Bill receivable dishonored done. Allow 8% IOC, interest on capital. Interest on capital 1 on the debit side of P&L. I am writing here 2 interest on capital 8%. 8% of 2 lakh, 2 lakh का 8% 16,000.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल में प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000, चार्ज 1500 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी ड्राइंग्स में प्लस या अलग लिख दो माइनस आईओडी 1500, पी एंड एल में क्रेडिट साइड आईओडी, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पेपर में आईओडी आईओसी नहीं चलता, परसेंटेज में होता तो हम आईओडी 6 मंथ्स के लिए लगाते हैं एवरेज बेसिस पर। अब रह गया फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सो हमारे पास फर्दर बैड डेट्स हैं 2000, डेटर्स में से माइनस, डेटर्स में माइनस फर्दर बैड डेट्स 2000, अब माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 5%, 83,000 का 5%, 4150, $78,850। अब माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो कि है 2%, 1577। सो 80,000 के डेटर्स थे जिसमें मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो भी है आ गया डिसऑनर बिल, फिर हमने उसमें से 2000 के फर्दर बैड डेट्स माइनस की 83, फिर हमने 5% की प्रोविजन माइनस की 78,850, फिर उसमें से हमने 2% की प्रोविजन माइनस की, हमारे पास आ गया 77,273। यस, अब ये सब कुछ P&L में डेबिट साइड जाएगा। हाउ? लेट्स सी। वर्किंग नोट नंबर 4, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स अकाउंट भी बना देख सकते हैं। बैड डेट और प्रोविजन अकाउंट बनाओ, फिर डिस्काउंट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट बनाओ। बैड डेट्स, पुराने बैड डेट्स, आपको पुराने बैड डेट्स नजर आएंगे ट्रायल बैलेंस में जो कि है 2400, फिर इसमें प्लस करेंगे फर्दर बैड डेट्स जो कि है 2000, फिर इसमें प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि है 4150, फिर उसमें से माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि है 3000, और ये अमाउंट आ जाएगी P&L में डेबिट साइड। और ऐसा ही अब हम डिस्काउंट के साथ करने जा रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड है, why I'm not finding out, yeah I got it, 2600। इसमें प्लस करेंगे फर्दर डिस्काउंट जो एडजस्टमेंट में गिवन होता है जो नहीं है, इसमें प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है 1577, और इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो ट्रायल बैलेंस में होती है वो गिवन नहीं है। सो द टोटल ऑफ फोर्थ इज 5550, and the total of 5 is 4177. Now that will be recorded। अगर नेगेटिव आता तो हम P&L में क्रेडिट साइड लिखते, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वर्किंग नोट नंबर 4, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वर्किंग नोट 5, 55504177। ऑल दी एडजस्टमेंट्स आर डन, सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं।
नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, अगर कुछ रह गया तो कवर कीजिए और अगर कुछ नहीं रहता है तो गो थ्रू कीजिए. 1 minute for trading and P&L along with the working notes. Take your time. 1 minute. Just a minute. पहले मैं नेट सेल्स और नेट परचेजेस भी अमाउंट में लिख दूं माइनस करके. 444,300 and here is 3,12,500, right? बाकी कैलकुलेशंस तो हो चुकी हैं. गुड. स्पीड अप. 1 minute फॉर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. थर्टी more seconds बचा. स्पीड अप. Now moving to the balance sheet for 1 minute. Have a look on the balance sheet for 1 minute. Okay, let's close the accounts, compute the GP, NP and the total of balance sheet. Gross profit to gross profit balance. Transfer to P&L by gross profit. Let's say 44430 plus 46,000, 4,90,300. एक लाख 8,300 आ गया जीपी ग्रॉस प्रॉफिट. ट्रांसफर टू P&L. नाउ विल कंप्यूट नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. मैं एक बार कैलकुलेशंस कर चुका हूं तो देयर इज नेट प्रॉफिट ओनली. टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 1,16,000. $259.48 is net profit. 25,948. This will be transferred to capital plus net profit. अगर ये नेगेटिव आ जाए तो हम इसे डेफिशिएंसी का नाम देके एसेट साइड पे रख लेते हैं या कैपिटल ही लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट नेगेटिव आना कैपिटल का बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है.
क्लोजिंग कैपिटल इज 2,10,448, जो अगले साल की ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी. 264,948 is the total of liability side, which should be the total of asset side also. डेटर्स की काफ़ी बड़ी कैलकुलेशंस रहती हैं. परफेक्ट बैलेंस शीट इज मैचिंग विद द टोटल ऑफ दिस. और जो इन्होंने डिसऑनर्ड की ट्रांजैक्शन की है वो एक बार हम लिख लेते हैं. नोट, बिल ऑफ ₹5,000 डिसऑनर्ड, राइट. तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी डेटर अगर मिस्टर एक्स है तो टू बिल रिसीवेबल. एंट्री होती है डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. आई रिपीट, डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. और हम ही होल्डर हैं, इसलिए हम डेटर में कर देंगे प्लस और बिल रिसीवेबल में कर देंगे माइनस. ऑब्वियसली एडजस्टमेंट से पहले. टेक योर 1 minute. Now the focus will be on the entire question, trading P&L balance sheet with all the working notes. Then we'll proceed to the new question. Speed up 10 more seconds. Right. Now I'm discussing question number 41. क्वेश्चन नंबर 41. ये आप क्वेश्चन अपने आप करेंगे, आज का यही वर्क है आपका. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू मिस्टर अर्जुन. इसके दो पार्ट हैं. बैड डेट्स, ओपनिंग प्रोविजन डेटर्स, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रिएट अ प्रोविजन, शो द इफेक्ट ऑन P&L एंड बैलेंस शीट. आपको बैलेंस शीट और P&L में अफेक्ट दिखाना है. तो आप क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे लाइक दिस, एवरीवन सी, तो आप ऐसे एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट. डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस फर्दर डिस्काउंट माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. और जब आप P&L अकाउंट बनाएंगे लाइक दिस, हियर P&L एंड एक्सट्रैक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वर्किंग नोट में ऐसे कैलकुलेशन शो करेंगे, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, एंड यू आर सपोज टू राइट द अमाउंट. जस्ट द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट. 41 का बी पार्ट. फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 18, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन द रेलिवेंट अकाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपने ये क्वेश्चन हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं. पहले बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, फिर P&L का एक्सट्रैक्ट, फिर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और फिर जर्नल एंट्रीज. वी हैव डन दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 41 इज फॉर प्रैक्टिस. यू विल डू इट योर सेल्फ. क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. आज का होमवर्क, आज की प्रैक्टिस का क्वेश्चन 41 है. Moving to question number 2.
हम दो पॉइंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, 8th एंड 7th। Now it's 6th and 5th. 6th, second का 6th, first 7th। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसकी जर्नल एंट्री रहती है, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300। फिर एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L। उसके बाद एंट्री बनती है, पूछी नहीं है, मैं डाल रहा हूं आपको समझाने के लिए ये एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L। इसीलिए P&L में क्रेडिट साइड आता है IOD, इसीलिए P&L में क्रेडिट साइड आता है IOD। और ये देखिए आया भी हुआ, यही क्वेश्चन हमने किया है, P&L में क्रेडिट साइड लिखा हुआ था IOD इस जर्नल एंट्री की वजह से। ठीक है, P&L IOD कैंसिल। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट, इसका मतलब कैपिटल में से माइनस। मैंने आपको बताया था ना, ये जो IOD है दिस, ये ड्राइंग्स में प्लस कर देते हैं, ये IOD ड्राइंग्स में प्लस कर देते हैं, या ड्राइंग्स में प्लस कर दो, या ड्राइंग्स में तो माइनस ही होनी है कैपिटल से, या सीधा माइनस कर दो। पूछी ये एंट्री है, ये नहीं, तो ये आप डाल भी देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, बट पूछी नहीं है ये एंट्री। मूविंग टू sixth part, moving to sixth part, 8th 7th, okay, that is the sixth part only, 7th तो हम पहले कर चुके हैं। 5th, interest on capital, the journal entry is interest on capital to capital, interest to capital, interest on capital account debit to capital 1500। कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ये देखिए कैपिटल में प्लस हुआ IOC, तभी हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं ना, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस हो गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, तो उसे खत्म करने के लिए P&L में डाल देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L में 2 IOC आएगा, और अगर आप ध्यान दें ये P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट में हमने 2 IOC लिखा है, P&L में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, दिस इज द रीजन। ये एंट्री पूछी है, ये नहीं पूछी। बीइंग IOD चार्ज्ड, बीइंग IOD ट्रांसफर टू P&L, बीइंग IOC कैलकुलेटेड, कंप्यूटेड, प्रोवाइडेड, बीइंग IOC ट्रांसफर टू P&L। Cool. This completes our lecture number 15. We'll continue this concept for 2 more lectures, 16 and 17. Bye bye, take care, God bless.